हेलो लर्नर्स, आपके मैम आ चुकी हैं एक और नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को अपन वन शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बाय शिखा मैम। तो अपन स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर को अपन आगे तभी पढ़ा सकते हैं जब तक हमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं पता हो। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट टॉपिक इज first we are going to revise all the concepts which we are going to use very quickly, then we will start this chapter. So in this chapter we are required this trigonometric ratio, so please quickly revise this trigonometric ratio. What is trigonometric ratio? Ratio of the sides of a right angle triangle with respect to the acute angles is called trigonometric ratio of the angle. Trigonometric ratios of acute angle in a right angle triangle given below. There are 6 ratios. What are those 6 ratios? Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. You know what is the meaning of sine theta? Sine theta tells us the ratio of perpendicular over hypotenuse. Cos theta tells us the ratio of base over hypotenuse. Tan theta tells us the ratio of p by p. Yes, cosec theta, opposite of reciprocal of sine theta, that is h upon p. Sec theta, h upon b. And cot theta is b upon p. अब आपको ये सोचने में आ रहा होगा कि ये पी क्या है, एच क्या है. दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. दिस इज कॉल्ड बेस. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो अब इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, इसमें से कोई एक बेस होगा, इसमें से कोई एक हाइपोटेन्यूज होगा. 3 साइड्स हैं तो हम 3 साइड्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं. वन इज परपेंडिकुलर, वन इज बेस एंड वन इज हाइट. तो नो सॉरी, one is perpendicular, one is base and one is hypotenuse. तो इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? यस, इट इज फिक्स अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज इज द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. तो हमेशा आप हाइपोटेन्यूज किसको कंसीडर करेंगे? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी उसको. अब जो बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है. क्या बोला मैम ने? जो बेस होता है और वो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में कितने और एक्यूट एंगल हैं? 2. एक एंगल ए और एक एंगल सी. अभी अपन एंगल ए की बात कर रहे हैं. तो फॉर द एंगल ए दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर. In which angle we are talking about, the side which is opposite to which angle we are talking about is called perpendicular. जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उसके अपोजिट साइड क्या कहलाती है? हमारी परपेंडिकुलर. द रिमेनिंग इज बेस. अभी हम किसकी बात कर रहे थे? एंगल ए के लिए. तो एंगल ए के लिए बीसी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर. और ये क्या कहलाएगा? हमारा बेस. ऐसे ही जब हम बात करें एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए ए बी क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर. और बी सी क्या कहलाएगा? बेस. ठीक है. उसके बाद ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन. इसके बाद आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्विकली लर्न करने हैं. ओके, क्विकली रिवाइज दिस. डन. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angles remain the same. If the angle is same, the sides vary, but the ratio will not. Why? Because the angle is same, because it is the ratio. When we talk about the angle, it is only about the ratio. Whatever the common part which cancels out tells us the angle. Okay, now here is some relation between some ratios. So what is the relation between the ratios? Cos theta, no, it is wrong. Cosec theta and sin theta are the reciprocal of each other. Cos theta and sec theta are the reciprocal of each other, and tan theta and cot theta are the reciprocal of each other. And we can also says that tan theta is the ratio of sine over cos. This is the information, but in this chapter there is no need, but we are revising. So okay, the next is trigonometric angles. This is very important for all. So quickly revise. We are going to use 3 angles, 3 ratios angles. So you need to learn this. Sin 0, 0. Sin 30, half. Sin 45, 1 by root 2. Sin 60, root 3 by 2. Sin 90, 1. Cos 90 is equals to sin 0. Cos 30 equals to sin 60. Cos 45 is equals to sin 45. Cos 60 equals to sin 30. Cos 90 equal to sin 0. जल्दी से आप याद कर लो. एंड व्हेन यू डिवाइड, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द tan थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ sin थीटा ओवर cos थीटा. तो आप जल्दी से इसको निकाल सकते हैं. Division done. Okay, let's move forward. Yes, it is very important. See the definition of line of sight. The line of sight is the line drawn
फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें ये ए पर्सन को कहाँ देखना था, सी पर, तो दिस इज कॉल्ड दी लाइन ऑफ साइट। अगर यही ए पर्सन को कहाँ देखना होता सामने, मीन्स बी पॉइंट पर, तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या कहलाती, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। बट अभी मैन क्या कर रहा है, ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल था, दिस इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल लेवल, द लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल or something in which the person is standing, that is called horizontal level, means the line which is parallel to it. Okay, अब इसी पर्सन को बी से क्या करना था, सी पर देखना था, तो इसने क्या किया, अपने आंखों का एंगल कुछ चेंज किया, तो जो भी इसने अपनी आंखों का एंगल चेंज किया है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले आपको लाइन ऑफ साइट पता होना चाहिए। नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है दैट इज द लाइन ऑफ साइट, बट कुछ ऊपर और नीचे देखने के लिए हम अपना कुछ एंगल चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जैसे यहाँ पे सपोज कोई इंसान खड़ा है सी पॉइंट पे, यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये द लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर द मैन। अब इसी मैन को ए पर देखना है, तो उसे अपनी आंखों का एंगल कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो जो भी एंगल चेंज कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको समझ में आया हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, द लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, और हमें अगर ऊपर देखना है तो क्या फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हमें ऊपर से नीचे देखना है तो क्या फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिस सीध में हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, जो हमारी, वही क्या हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। द डायरेक्शन टू सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. See another definition, line of sight and horizontal level. Line of sight is a line drawn from the eye of an observer to the object on the object viewed by the observer. This is called observer and this is called object. इस observer को ये object देखना था, तो जो भी जिस लाइन पे उसको अपनी आंखों का एंगल रखना होगा, that line is called line of sight. Very important for forming the figure formation. के एंगल ऑफ एलिवेशन अभी अपन पढ़ चुके हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिलेवेंट फॉर द ऑब्जेक्ट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके ऊपर क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर द पर्सन स्टैंडिंग एट द पोजीशन सी। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो उसको ऊपर से नीचे देखना था, तो ये क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। Okay, let's see, this is the horizontal level and the angle of, just like this point P, this is the horizontal level, and this bird needs to see the rat, so she will change their angle by, this angle is called angle of depression, and this is a line of sight for the bird to see the rat. Okay, now we are going to try the first question. The first question says, a kite is flying at a height of 16 meters above the ground. Let's suppose this is our ground. A kite is flying at the height of, how much height? 60 मीटर above the ground. The string attached, अब ऐसा तो है नहीं काइट सीधी सीधी उड़ रही है, नहीं, वो बोल रहे हैं the string attached to the kite, the string attached to the kite is temporarily tied to the ground. So this is the string, and ये जो kite है इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 60 मीटर, और ये स्ट्रिंग है जो ग्राउंड से अटैच है, और काइट कितने एंगल पे इंक्लाइन है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. Now we need to calculate, find the length of the string. This is the length of the string. We need to find out the length of the string, assuming that there is no slack, means कोई भी गांठ वगैरह और कोई भी ढील नहीं है, when the kite is making an angle 60 degree with the ground. इस पूरे चैप्टर में फिगर फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह जाएगी और जो एंगल्स आपने याद कर लिए हैं हम उसी का यूज करने वाले हैं. तो अब बच्चों ये आपको एक कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी की हाइट के बारे में बात करते हैं तो वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री. तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने नाम दे दिया दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी. तो हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. हमें कौन सा एंगल दिया है, एंगल सी, तो हम tan ऑफ सी. अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, और दिया क्या है, परपेंडिकुलर फॉर द गिवन एंगल सी. तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होता है,
वेरी गुड, साइन। तो हम इसमें tan यूज नहीं करेंगे। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम आप कभी साइन ले लेते हो, कभी कॉस ले लेते हो, कभी tan ले लेते हो। तो बच्चे इसको हम क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था और हमें परपेंडिकुलर गिवन था, तो हमने ऐसा वो रेशियो ऑप्ट किया जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन सी। साइन ऑफ सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ए सी। और एंगल सी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 60 डिग्री। ए बी कितना दिया है हमें, 60 मीटर। ए सी कितना दिया है हमें, निकालना है। आपको मैंने साइन 60 की वैल्यू बताई थी। कितनी होती है, यस वेरी गुड, √3/2। तो 60 ओवर एल। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60 इंटू 2 ओवर √3। हमें पता है हम कभी भी अपना आंसर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइज करने में √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो द वैल्यू ऑफ एल इज 120 √3/3, दैट इज 40 √3 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके लर्नर्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ओके, सी द सॉल्यूशन आर गिवन बिलो। लेट दिस इज द फिगर string. Yes, our answer is perfectly correct. Okay, now try this question. Okay, you need figure for this. Okay, let me make the figure for you. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ठीक है, सबसे पहले हम बैंक ऑफ अ कैनाल मीन्स रिवर का किनारा। तो a vertical tower a TV tower stands vertically on the bank of the canal from a point on the other bank. Suppose this is the first bank and this is our river and this is the opposite bank. Okay, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is, this is our tower, TV tower. If you see from this point, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay. From another point, 20 meter away, if you move this side, this point will be 20 meter away. If you move this side, this will be 20 meter towards. So you need to move 20 meters away. Okay, you had moved 20 meter away. Now, from this point, this is 20 meter away. From this point to the line joining this point to the foot of the tower, the angle of now the angle of elevation changes to 60 degree. No, 30 degree. Now the angle of elevation changes to 30 degree. Find the height of the tower. Let the height of the tower, we need to find out the height, and this is our width of the canal. So let the width of the canal be x. तो अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो हम जल्दी से लेबलिंग कर लेते हैं ABCG. So in triangle ABC, tan 60 is equals to, क्या मैं आपके लिए पूरा बार बार लिखूं, नहीं, हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। अब आपको पता है आंसर को कैसे राइट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बट हमने अभी प्रैक्टिस कर ली है तो अपन डायरेक्ट करेंगे। हाँ, तो tan 60 इक्वल्स टू h ओवर x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, √3. वेरी गुड. सो h is equals to √3x. This is our first equation. Similarly, in triangle ABD, tan 30 equals to h over pura base. So it is x plus 20. What is the value of tan 30? 1 upon √3 h over x plus 20. So 1 over √3 is equals to h over x plus 20. Now do the cross multiplication. So x plus 20 equals to √3h. From the first equation we had find out that h is equals to √3x. So हम इसकी values में put कर देते हैं. So x plus 20 is equals to 3x. This implies 2x is equals to 20. The value of x is 10 meter. So width of the canal is 10 meter. Okay, let me write the answer. The width of the canal is 10 meter and the height of the tower is √3x, means, yes, 10 √3 meter. Unit writing is very important in this chapter because we need to convert the length if both the lengths are not in same measure, same unit. Okay, this question is clear to you? चलो, अब ऑब्जर्व करते हैं। हमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप बताएं क्या ऑब्जर्व किया होगा? व्हाट? ओके, वेरी गुड। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम
किसी पॉइंट के फुट 90 डिग्री से दूर जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कभी कभार क्या होता है बच्चों को फिगर फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जितना ज़्यादा आप 90 डिग्री के पास जाते जाओगे उतना आपका एंगल बड़ा होगा, जितना आप 90 डिग्री से दूर जाओगे उतना ही आपका एंगल छोटा होगा। क्या आप यहाँ पे कहीं 45 एंगल बन सकता है? नहीं, ये कहाँ बनेगा? 60 से 30 के बीच में। ओके लर्नर्स, चलो अब अपन ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। See the solution, we got the same answer. Okay, try this MCQ. इस चैप्टर को अपन वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताएं। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स, दो पोल हैं जिसकी हाइट, फर्स्ट की हाइट कितनी है 16 मीटर, दूसरे की हाइट कितनी है 10 मीटर। तो हम बना लेते हैं टू पोल्स, ये हो गया हमारा 16 मीटर, ये हो गया हमारा 10 मीटर। दिस इज 16 मीटर हाइट अबव एंड दिस इज 10 मीटर, टू पोल्स ऑफ हाइट 16 एंड 10। अच्छा, जब मैं इसको ऐसे डेटेश बनाऊंगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ होगी 10 मीटर, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ऐसे अपन हॉरिजॉन्टल लेवल बना सकते हैं। वो बोल रहे हैं दो पोल के टॉप को हम कनेक्ट कर रहे हैं वायर से, तो वायर इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर। तो हम ट्राइंगल नाम दे देते हैं ट्राइंगल एबीसी। ओके, यूज दिस ट्राइंगल। इफ दिस इज ऑफ 10 मीटर देन द अबव हाइट मेजरमेंट विल बी 6 मीटर। तो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। 10 60 इज इक्वल्स टू 6 ओवर बी सी। बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, द लेंथ ऑफ द वायर। तो आप 10 60 इसमें यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताओ क्या यूज करेंगे। वेरी गुड, साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू 6 ओवर एल, द वैल्यू ऑफ साइन 60 is 3/2. So the value of L is 4√3. If you simplify this, the options are incorrect. Okay, do this again. L is equals to 12 over root 3. Now we are going to rationalize this. So it is going to be 4√3. Okay, so the correct option is 4√3. Okay, now move to the next question. This is degree over here. सबसे पहले फिगर फॉर्म करें आप। A 20-meter long ladder touches a wall at a height. This is our wall. The ladder is touching the wall at a height 10 meter and the ladder is of height 20 meter. The angle, this is our ladder. The angle which the ladder makes at the horizontal level. We need to find out this angle. Okay, we are talking about the perpendicular and the hypotenuse. Which ratio have perpendicular and hypotenuse? Yes, sine theta. So sine theta is equals to 10 upon 20. Sine theta is equals to half. Which angle have in which the sine value is half? The sine value is half in the angle sine 30. Compare the angle, so the value of theta is 30 degree. Which option is correct? B option. Okay, now try next question. If the length of the shadow If the length of the shadow of a tower is root 3 times the height, let the height be h. So the shadow will be root 3h according to the question. The angle of elevation of the sun, we need to find out this angle. Now we are using the perpendicular and the base, in which we are going to use perpendicular and base tan theta. So tan theta is equals to h over root 3 h. H is cancelled by h. So the value of tan theta is equals to 1 by root 3. Theta will be, yes, how much? 30 degree again.